about curriculum, most of the aspects I have the idea that we will share, discuss, and then we will try to understand what the facts are. So wherever and whenever I feel like having your ideas, I will posit the questions. You can reply me one by one, and later on we can conclude it. All of you have heard about the word curriculum, and this curriculum, right from childhood, we used to call it syllabus. Syllabus is a more appropriate word which we have been using at school level. Of course, syllabus is a part of curriculum. At that time, I guess only a few of us, बहुत कम लोगों ने शायद करिकुलम वर्ड सुना होगा उस समय, स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम. लेकिन when we come at the higher level, especially after we have joined the teaching, then we might have come across this word curriculum. Most of us might have come across the word curriculum after that only. Otherwise, prior to that, we used to refer the word syllabus. Curriculum basically is a word that has come from Latin language. And in Latin भाषा में करिकुलम का मतलब होता है रनवे या फिर एक कोर्स. रनवे और अ कोर्स, वो जगह जहां पर लोग दौड़ सकते हैं और दौड़कर आगे जाते हैं अपने गोल की तरफ. They are moving towards their goal. In simple words, in Latin, this word means to move towards the goal. And the same is being used in education also. In English, this word curriculum, this refers to something what we call achieving the goals, or a way or a pathway through which you can achieve the goals of education. Curriculum, if we try to define, any of you, could you please help me if you are aware about what you feel what the curriculum is? I hope you can see my presentation. Yes, sir. Could you please help me about what you mean by curriculum? You can just mail me. It's a subject comprising of. Could you please speak a little louder? मॅडम तुमचा आवाज नाही येते, थोडं जोराने बोलाल. Okay, sir, it is the subject comprising a course or a study in the school or in the college. Okay. Subjects comprising a course is known as curriculum. It is comprising of Course. for studying in college or university or school. Okay. It comprises of activities or instructions or content for studying in either school, college, or university. Fine. This can be one idea. Anyone else? Curriculum is the 3 years syllabus. Curriculum 1 to 3. means the syllabus. Okay. And what do you mean by syllabus? Syllabus is for only 1 year and curriculum is the 3 years or 4 year degree. In short, you want to say that curriculum is for a particular level. Okay. Yeah. Right? It is for a particular level, maybe a primary level, secondary level, higher secondary level, college level, graduation, post-graduation, something like this. Okay. No, sir. I want to say curriculum is the 3 year syllabus. Curriculum is a 3-year syllabus. But why you want to fix to 3 years only? Not 3 years. Any. So that I said that it is for a particular level. अगर graduation
ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल का हमारे यहाँ है, तो 3 साल का करिकुलम हम डिजाइन करेंगे एक साथ। ओके, हाँ सर। पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 2 साल का करेंगे। हाँ, या सेकेंडरी लेवल पे 2 साल का, हायर सेकेंडरी पे 2 साल का, एंड समथिंग लाइक दैट, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, लाइक दैट। ओके। फाइन, एनीवन एल्स? Actually, sir, हाँ, Syllabus designed as for overall development. it is designing. It is designed for overall development, for suppose for 3 years, for 2 years. हाँ, but whose overall development, mine or yours? Whose? Students sir. Of course. Okay, so it is designed for the overall development of the students. Fine. This is also fine. Anything else? yes, sir. Yes sir. Sir, we can say that syllabus is a confined material or a confined syllabus which is designed to teach both students for practical and theoretical knowledge. It is syllabus. And what about? It's a confined syllabus which we plan during the course of during the time period for the completion of the course, in which we enhance the knowledge of the students both practically and theoretically. Okay, so do you want to say that curriculum and syllabus are same? So syllabus is a part of curriculum, I can say. Yes, so you can say that it is a part, the syllabus is a part of a curriculum, that is Right, sir. okay, something like that. Okay, fine. Anything else? Shall I speak? Huh? Also, it is designing or framing of It is designing and framing of syllabus. Okay, syllabus. sentence and fulfill the course plan program. Okay, fine. These and many more can be the definitions of curriculum. See, this basic understanding is very, very must. It is not necessary that we should cram a particular definition and move ahead. Not like that. We can think over, we can read many definitions and then think over and then find out that what are the basic components of a curriculum, and accordingly we can try to think and we can express it in our own words also. हमको हमारे शब्दों में भी बनाना चाहिए, और वो कब होगा? जब हमने पहले काफी कुछ पढ़ा होगा, उसको समझेंगे और समझकर फिर सोचेंगे कि कौन सी चीजें जरूरी हैं। यहां पर एक और चीज आपको बताऊं, अभी जैसे आप में से किसी ने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो करिकुलम क्या हो जाता है? करिकुलम सिर्फ क्लासरूम तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता है, वह क्लासरूम के बाहर की चीज भी है। तो यू कैन ऑल्सो से, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि करिकुलम इज समथिंग व्हाट इज रिलेटेड, curriculum includes the activities within the classroom and outside the classroom. Curriculum includes the activities within the classroom and outside the classroom for the overall development of the prospects or of the learners. You can say like this. Here you can see that we are talking about overall development. Whose development? The students' development or the learners' development. Where can this development happen? This development can be either in the classroom or outside the classroom also. So, with this, we can try to define the curriculum. You can see this picture. Do you feel that this PPT and the picture, whatever I have set, is it vague or it connotes something? That it connotes that we It is very, very them with indicative. Yes, right. It is very, very indicative. And this tries to connote that curriculum adds wings. It is the wings of the education. Actually, in fact, I feel that curriculum is the wing and the root. Curriculum is the wing and the root
for the education. If we don't have curriculum, it is difficult, very difficult for education to move ahead. Before we try to understand more about curriculum, I would just like to talk about philosophy, education, and curriculum. Philosophy, education, and curriculum. If अगर आप देखें तो आमतौर पर एजुकेशन उसको दिशा कहां से मिलती है, तो उसको जो दिशा मिलती है वो दिशा उसको फिलोसॉफी से मिलती है. फिलोसॉफी एड्स टू द डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन. अब एजुकेशन के पास डायरेक्शन तो है, पर एजुकेशन चलेगा कैसे? तो एजुकेशन को चलने के लिए कुछ चाहिए, और वो है करिकुलम. That is curriculum. It is this curriculum that adds wings and roots for the education to achieve the goal. In this way, education, philosophy, and curriculum are correlated with each other. They cannot walk or they cannot remain aloof of each other. अलग नहीं रह सकते, उनको एक साथ रहना ही रहना है. अगर फिलोसॉफी नहीं है तो एजुकेशन को कोई दिशा नहीं है, और एजुकेशन के पास दिशा नहीं है तो करिकुलम का कोई मतलब नहीं बनता है. फिर वो करिकुलम जो है वो वेग करिकुलम बनेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है. जब भी हम करिकुलम डिजाइन करते हैं हम हमेशा सोचते हैं पहले कि हमें क्यों, और ये क्यों जो है वो हमको एजुकेशन बताता है. एजुकेशन को ये कहां से पता चलता है कि क्या करना है, तो वो फिलोसॉफी बताता है कि भाई आपको ये करना है. और फिलोसॉफी को कैसे पता, तो फिलोसॉफी सोसाइटी की नीड्स देखता है, सोसाइटी को देखता है, कल्चर को देखता है, ओके, उसकी जरूरतें हैं उसको देखता है, और उस पर से वो बताता है कि भाई समाज की ये जरूरतें हैं, इसीलिए शिक्षा में इन चीजों पर भार देना चाहिए. और इस प्रकार फिलोसॉफी, शिक्षा और करिकुलम तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं. हम ऐसा कह सकते हैं कि फिलोसॉफी के बिना शिक्षा अंधी है. एजुकेशन इज ब्लाइंड विदाउट फिलोसॉफी. एंड अगेन एजुकेशन इज लेम, लंगड़ा है, वह चल नहीं सकता है. एजुकेशन इज लेम विदाउट करिकुलम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. शिक्षा इन दोनों से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है, एक दिशा देती है. इसीलिए फिलोसॉफी जो है दिशा देती है. तो अगर वो दिशा नहीं है तो मतलब शिक्षा अंधी है. और करिकुलम क्या करता है, करिकुलम उसको अपने ध्येय सिद्ध करने में मदद करता है. करिकुलम उसे अपने ध्येय, गोल जो है वो सिद्ध करने में मदद करता है एजुकेशन को. तो अगर करिकुलम नहीं है तो वह कुछ कर ही नहीं सकता है. तो करिकुलम के बिना शिक्षा जो है वो पंगु है. करिकुलम शिक्षा का एक भाग है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. इस भाग के बिना शिक्षा कुछ भी नहीं कर सकती है. तो इस प्रकार से फिलोसॉफी, एजुकेशन और करिकुलम तीनों जो है एक ट्रायड बनाते हैं, और ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा पेश होता है. ये पिक्चर जो मैंने लगाया वो इसीलिए लगाया था क्योंकि करिकुलम हमेशा शिक्षा को विंग्स देता है. अगर हमें कुछ भी करना है तो हमारे पास पंख होने चाहिए. उड़ना है आसमान में तो उसके लिए पंख होना चाहिए. शिक्षा के लिए भी यही जरूरी है, और करिकुलम ये रोल अदा करता है. द करिकुलम प्लेज दिस रोल, एंड दैट इज व्हाई आई हैव प्लेस्ड दिस पिक्चर हियर. अभी हमने ये डिस्कस किया कि फिलोसॉफी, एजुकेशन और करिकुलम के बीच क्या संबंध है. हमने कंसेप्ट ऑफ करिकुलम के लिए भी अभी थोड़ा डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने कुछ बताया. उसके बाद मैंने आपको बताया कि करिकुलम क्या है. करिकुलम कोई भी वो एक्टिविटी है जो क्लासरूम के अंदर या बाहर की जाती है जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके. करिकुलम इज अ टूल दैट ऑफर द डायरेक्शन टू द teaching learning process.
करिकुलम एक साधन है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को एक दिशा अर्पित करता है। करिकुलम को हम एक गाइड भी कह सकते हैं, वह दिशा सूचक है। करिकुलम रिफर्स टू द गाइड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। अब देखिए, ये मैंने सिर्फ यहां पर विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है। आगे भी हमें जोड़ना, ये डेफिनेशन इज ऑल्सो फाइन बट इट इज नॉट कंप्लीट, वी हैव टू कंप्लीट इट। और वो कंप्लीट कैसे होगा? करिकुलम रिफर्स टू द गाइड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। पर किसके लिए? फॉर द लर्नर्स। क्यों? फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। हमको कोई भी डेफिनेशन, देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी बट सभी डेफिनेशंस कंप्लीट नहीं होती है। हमको यह भी सोचना है कोई भी डेफिनेशन को कंप्लीट कब बोलेंगे? जब उसमें क्यों, कहां, कैसे सब कुछ आ जाता है, तो वो डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन होगा। यहां पर मैंने जो लिखा है, करिकुलम रिफर्स टू द गाइड विद इन एंड आउटसाइड द क्लास, दिस इज फाइन इनफ, इट कैन बी अ डेफिनेशन। वह एक व्याख्या हो सकती है लेकिन यह संपूर्ण व्याख्या नहीं है। तो हम इसको संपूर्ण तरीके से व्याख्यायित करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि गाइड है कहां पर? तो विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। किसके लिए? तो लर्नर्स के लिए। क्यों? तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो इस प्रकार से यह एक कंप्लीट डेफिनेशन बनता है। करिकुलम रिफर्स टू अ गाइड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम फॉर द लर्नर्स फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, या फिर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। Once again, I repeat, curriculum refers to the guide within and outside the classroom for the overall development of the learners. इसके सिवाय करिकुलम की और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। उसमें एक व्याख्या मैंने और नीचे लिखा है, करिकुलम रिफर्स टू द इंटरेक्टिव सिस्टम। अभी मैं और आप, कभी मैं बोलता हूं, कभी आपको बोलने के लिए प्रेरित करता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं, आप लोग जवाब देते हैं, तो यह एक इंटरेक्टिव सिस्टम है। करिकुलम रिफर्स टू एन इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। सीखने के लिए और सिखाने के लिए यह एक इंटरेक्टिव सिस्टम है। इसमें चर्चा भी हो सकती है, वन वे फ्लो भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, मल्टी वे भी हो सकता है, विथ स्पेसिफिक गोल्स। ये दिशा या इंस्ट्रक्शन या लर्निंग जो है ऐसे नहीं होता है, वेग नहीं होता है, यह ध्येय पर आधारित है। हमारे पास खास उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को देखकर हमें ये काम करना है। उन उद्देश्यों के लिए हमारे पास विशिष्ट कंटेंट है, विशिष्ट स्ट्रेटेजी है, विशिष्ट मापन मेजरमेंट के प्रक्रिया है और रिसोर्सेज भी है, साधन सामग्री भी है। The desired outcome of the curriculum is successful transfer or development of knowledge, skills and attitudes. करिकुलम क्या इच्छा रखती है या फिर करिकुलम क्या चाहता है? करिकुलम ये चाहता है कि बच्चों में निर्धारित ज्ञान, स्किल और एटीट्यूड, वृत्ति, वो जो है उसका विकास हो। हम जो भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे बच्चों में ज्ञान आना चाहिए। सिर्फ ज्ञान नहीं, उनमें स्किल, कौशल्य भी विकसित होना चाहिए। और सिर्फ उतना ही नहीं, जरूरी है एटीट्यूड, वृत्ति। नॉट ओनली दिस, इंटरेस्ट भी जरूरी है, एप्टीट्यूड भी जरूरी है। यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट, ना, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। और जब तक ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होते, करिकुलम का काम पूर्ण नहीं होता है। जब तक until these goals are satisfied, the work of education is not completed. It remains incomplete. तो वहां पर हम ये कहेंगे कि करिकुलम कहीं पे कुछ मिस कर गया।
सो आई होप, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग करिकुलम को अगर जो फोकस करें तो करिकुलम क्या है, तो कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर की कोई भी प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति? ऐसी प्रवृत्ति जिससे सर्वांगीण प्रकार का विकास हो। किसका विकास? बच्चों का विकास। तो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति कक्षा के अंदर की या कक्षा के बाहर की जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसे हम करिकुलम कहेंगे। आप कोई भी डेफिनेशन उपयोग में ले सकते हैं। ये भी कुछ डेफिनेशंस हैं, इसे भी आप उपयोग में ले सकते हैं। करिकुलम इन्वॉल्व्स लर्निंग, getting knowledge, strategic processes and assessment. Curriculum is defined and planned learning with intended outcomes while recognizing the chance of possible unintended outcomes. ये भी एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, बहुत जरूरी। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य कुछ खास है, विशेष है कि हम करिकुलम से आप लोगों को परिचित कराएं। ये हमारा उद्देश्य है। पर इस उद्देश्य के सिवा भी कुछ ऐसे उद्देश्य, देयर वुड बी सम ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव नॉट प्लान्ड एंड इट कम्स इन बिटवीन। वह भी बीच में आ जाता है। अच्छा करिकुलम वो होगा जो ऐसी चीजों को भी समाहित करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए स्पेस, जगह रखता हो। क्योंकि हर चीज, हम लोग सभी मानव हैं और हम सभी की भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस अलग अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हम लोगों में। हम सब चाहते हैं कि करिकुलम ये करे वो करे, पर हमारा मन, हमारे इमोशंस हमसे कुछ और डिमांड करते हैं। करिकुलम को ये भी देखना है कि हम ऐसी बातों को भी इंक्लूड करें जिससे हम हमारे ध्येय या लक्ष्य तक पहुंच सके। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक अच्छा डेफिनेशन है ये। इसके बाद करिकुलम रिफर्स टू नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, which includes learning standards or learning objectives they are expected to meet, the units and lessons that teachers teach, वो सारी चीजें जो टीचर पढ़ाते हैं, the assignments and projects, etc etc etc। तो मेरे ख्याल से यहां पर आप लोग करिकुलम के कंसेप्ट से क्लियर हैं। किसी को कोई शंका, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? अगर कुछ है तो हम अभी चर्चा कर सकते हैं। Shall we move ahead? I think yes. Fine, thank you. बीच बीच में थोड़ा बोलते रहिएगा। Now the next topic comes is why we need a curriculum. ऐसा क्या है कि आज आप लोग 3 घंटे करिकुलम को देंगे? 66 यू, मी, आपकी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज, लगभग 70 से 72 लोग हैं जो इस कार्य के पीछे पड़े हैं। 210 मैन आवर्स वी आर इन्वेस्टिंग। वाई? क्यों? ऐसा क्या है करिकुलम में? करिकुलम की ऐसी क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ द करिकुलम? आप लोग मुझे बताएंगे कि करिकुलम की क्या जरूरत है। एनीवन? Curriculum is essential for completing of teaching. थोड़ा वॉल्यूम करेंगे मैडम? मुझे थोड़ी आवाज कम आती है आपकी। Curriculum is
need of curriculum is to fulfilling our aims and objectives of teaching and learning. Hello. हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करिकुलम की जरूरत होती है। हमारे नहीं, एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे करेंगे आप? उसे पूरा कुछ तो चाहिए, तो वो है करिकुलम। तो इसीलिए करिकुलम की जरूरत है। ठीक, दिस इज वन। व्हाट मोर? For the overall development. फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, एजुकेशन वांट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे कैसे? उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। Through curriculum only. हाँ, तो वो चीज आपको करिकुलम ही देगा, और इसीलिए करिकुलम की जरूरत है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। पहला हमने ऑब्जेक्टिव्स कहा कि ऑब्जेक्टिव्स शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, हेतु हैं, ध्येय हैं, लक्ष्य हैं, उन सब की पूर्ति के लिए करिकुलम की आवश्यकता है। करिकुलम इज रिक्वायर्ड। एंड सेकंड थिंग, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स we need to have some activities and this is provided by the curriculum. ये करिकुलम निर्धारित करता है, करिकुलम बताता है, इसीलिए करिकुलम की जरूरत है। What more? और क्या है? To enhance the To employability among the students and enable them to impart in the society, growth and development of the society. समाज का विकास, शिक्षा का, फिलोसॉफी का ये भी उद्देश्य है कि एक ग्लोबल सिटीजन, हम लोग सभी ग्लोबल, ओके, तो दैट इज इम्पार्टेड थ्रू करिकुलम ओनली। समाज का विकास वो भी शिक्षा का उद्देश्य है कि भाई समाज का विकास होना चाहिए। फिलोसॉफी ये चाहता है, बताता है कि भाई एक इंडिविजुअल आगे बढ़े उतने से काफी नहीं है, इंडिविजुअल और समाज दोनों एक साथ बढ़ने चाहिए। तो ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सामाजिकता भी हम सिखाते हैं, और वो भी करिकुलम में इन्वॉल्व किया जाता है। इसीलिए सामाजिकता सिखाने के लिए भी करिकुलम की आवश्यकता है। फाइन, ओके, व्हाट मोर? Sir, curriculum help us in making One by one. specific objectives. Sir, Specific- specific objectives decision के लिए help, मतलब हर कोर्स का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो करिकुलम हेल्प करता है कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स इस करिकुलम में रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो हर एक विषय का अपना ही अंदाज होता है, तो उसके लिए अलग अलग हेतु हो सकते हैं। जैसे भाषा के लिए ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। तो विषय के अनुरूप काम करने के लिए भी हमें करिकुलम की जरूरत होती है। फिर व्हाट मोर? Someone else So wants to to meet the social needs through education, we need the curriculum. to meet social needs, समाज की सारी जरूरतों की पूर्ति के लिए भी की And जरूरत होती है। overall development of the learner, we need the curriculum. Fine, education. overall development. हाँ, what more? So Are it co- gives guidelines for teachers as well as students, for the teacher what and for the क्या? learner what to learn. एक बार फिर से बोलेंगे? Sorry, I couldn't hear your voice is too low. थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। Sir, it gives guidelines to the teachers what to teach and to the students what to learn. It is very important. Curriculum is a guide. हमने अभी आगे कहा था, curriculum is a refers to a guide. वो गाइड की तरह है। क्या पढ़ाना है कौन तय करेगा, किसे पढ़ाना है कौन तय करेगा, कब पढ़ाना है ये भी कौन तय करेगा। शिक्षा में ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, एजुकेशन में, और ये करिकुलम निर्धारित करता है कि कौन क्या कब और कैसे पढ़ेगा। इवन मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, व्हाट टू यूज, विच कंटेंट शुड बी देयर, इन सारी चीजों को निर्धारित करने का काम करिकुलम का है। ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। ओके, वो ऐसे नहीं होता है कि कभी भी कुछ भी रख दिए, नॉट दैट।
लेकिन एजुकेशन जो है वो बताता है कि भाई इस लेवल पर इसकी जरूरत होगी, तो करिकुलम तय करता है कि यहां पर ये चीज रखनी चाहिए। 8वीं कक्षा में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, 9वीं कक्षा में ये पढ़ाना चाहिए, कॉलेज में ये पढ़ाना चाहिए। तो व्हाट शुड बी टॉट व्हेन, not only what should be taught when, but what should be taught when, how, and to whom. These all are being guided by curriculum. तो यहां भी curriculum turns very very important. It is priceless. बहुत मूल्यवान है, इसके बिना हमारा काम कुछ नहीं हो सकता है। What more? Hello, sir. हाँ, Develop various skills in students other than theoretical knowledge, to develop various skills in students so that they can face life. this is very important. जीने के लिए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है। इन रियल लाइफ, the real life is something, the experience of the real life is something different than what is being taught in education. Fortunately, unfortunately, we have been not been able to deliver those practical experiences to our students, but it is must, बहुत जरूरी है वो कि हम बच्चों को वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दें, और उसके लिए what is required, अपने जीवन जीने के लिए some skills are required. Okay, some values are required, some qualities are required. Those skills, values, that is very important, and that is being decided by the curriculum. तो करिकुलम ये हर एक इस बार भी अगर जो आपने अभी एनईपी देखा हो, सभी ने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा, एनईपी के लिए खूब सारी चर्चाएं हुई है। तो और एनईपी के भी तीसरे चौथे पन्ने में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको खूब सारे वैल्यूज मिल जाएंगे कि ये भी डेवलप होना चाहिए, वो भी डेवलप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए। ओके, देयर आर मैनी, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो बाकी रखा है। ओके, ऐसा कोई स्किल नहीं है जो उन्होंने बाकी रखा है, सब चीज इंक्लूड किया है, सब चीज होना चाहिए। दिस इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय करिकुलम. Curriculum is thus very very important. प्रियदर्शनी says that co-curricular activity वो भी बहुत जरूरी है। अब ये co-curricular को ये लोग जो बहुत ज्यादा भेद नहीं करेंगे, ओके, एक्स्ट्रा और co-curricular नहीं बोलेंगे, that also is very important. उसके बिना बच्चों को जो अभी हमने बात किया कि स्किल डेवलपमेंट और रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो नहीं मिलता है, तो हमें वो भी देना है within and outside the classroom. ये सारी एक्टिविटीज को हमें इंक्लूड करना चाहिए. What more? Sir, to develop IQ and EQ both in the students, that is emotional quotient and intellectual quotient in the students. समाज में आगे जाएंगे, कल को जॉब में आएंगे, तो IQ वो तो जरूरी है और है, लेकिन उस IQ के साथ आपको EQ की भी जरूरत है. कई सारे लोग आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, मतलब IQ इनका बहुत अच्छा होता है, बट EQ के मामले में मात खा जाते हैं. They are trouble. So to develop this EQ and IQ also, that is determined by curriculum. कि कब कहाँ कौन सी एक्टिविटी हमको रखना है, कौन सी कहानियां हमको कब पढ़ाना है, वो सारी चीजें करिकुलम डिसाइड करता है. सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी हम सभी ने पढ़ा है, सभी ने सुना है. ओके, बचपन में हमें वो दादा दादी ने सुनाया होगा घर में, और स्कूल में भी चौथी पांचवी कक्षा में पहली दूसरी कक्षा से वो शुरू कराते थे. पहले 4 लाइन 5 लाइन का होता था, वही रटवाते थे, फिर उसमें इलेबोरेशन पोर्शन आता था, और 7वीं 8वीं तक आते आते वो खत्म हो जाता था. उसको जितना लंबा करना था लंबा करके हम उसे निपटा देते थे. तो दोज वर द वैल्यूज, वो वैल्यूज हमें वहां पर उस लेवल पर डेवलप करने के लिए करिकुलम प्रेरित करता है. करिकुलम इज दस वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट मोर, एनीथिंग एल्स? Yes, sir. हाँ. Sir, balancing between the between both
क्लास के अंदर जो होता है वो भी और क्लास के बाहर भी, कि बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अगर वो बैलेंसिंग रहेगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा और बच्चे हेल्दी लाइफ जी सकेंगे उस वजह से। That balance is also very very important. ये बैलेंस जो है आपको वर्क और लाइफ, अभी हम लोग आजकल मोस्ट ऑफ अस वी आर आल्सो फेसिंग द डिफिकल्टी इन द बैलेंसिंग द वर्क एंड लाइफ, हमारे पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, इन दोनों के बीच बैलेंस करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Education strives for this also. At different level, it strives in a different way, and these all are embedded, included in the curriculum, and curriculum tries to inculcate. Unfortunately, again here I don't feel that sometimes I feel that we have been unable to help the students understand this fact, but then somehow curriculum, it is the aspect of the curriculum has to do it. And this is also one of the need of the curriculum, and thus one of the aspects of curriculum, and thus this turns curriculum to be very very important and necessary. This generates the need of the curriculum. Anyone else? Anything? इसके सिवाय बहुत कुछ हो सकता है. It could be living, livelihood, एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन, वैल्यू एडिशन. ये मैंने लिखा है इनहेरिट, डेवलप एंड ट्रांसमिट. शिक्षा का एक काम ये भी है कि हम हमारा कल्चर को इनहेरिट करें, अगर उसमें कुछ खराबी है तो उसको दूर करें, और उसमें जो अच्छा है वो जोड़ें, यानी कि डेवलप करें, और ट्रांसमिट करें. ट्रांसमिशन भी करना है. एजुकेशन इज ऑल अबाउट एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन. तो हमें वो इनहेरिट करना है, जो उसमें कुछ सुधार करना हो तो उसको सुधार करना है, डेवलप करना है, और उसको ट्रांसमिट भी करना है. हम हमारे बच्चों को क्या देंगे, व्हाट आर वी सपोज टू गिव टू आवर चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये अगर आपको देखना है, सोचना है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, तो शिक्षा सुदृढ़ होना चाहिए. और शिक्षा सुदृढ़ तब हो सकता है जब करिकुलम मजबूत हो. तो इधर भी करिकुलम की जरूरत आन पड़ती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करिकुलम नीड्स टू बी वेरी वेरी डायनेमिक. और ये अफसोस की बात है कि हम लोग करिकुलम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. बाकी करिकुलम को एवरी ईयर दैट शुड बी द रिविजन. हमें उसको बार बार देखना चाहिए, तब तक देखते रहना चाहिए. दीज डेज टेक्नोलॉजिकल एज में डेवलपमेंट जब इतना फास्ट है, हर रोज हर सेकंड कुछ ना कुछ नया हो जाता है, उस समय हम लोग 5 साल या 10 साल के बाद अगर करिकुलम को चेंज करते हैं, इट इज समथिंग इनजस्टिस विद द सोसाइटी. यू कैनॉट बी सो अनजस्ट एंड अनरियलिस्टिक. यू हैव टू थिंक. आपको कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन करते रहना है, और साथ में यह भी देखना है कि हम हमारे कल्चरल एस्पेक्ट जो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं हम पिछड़े न रह जाएं, उसके लिए साथ साथ आगे भी बढ़ना है. तो वी हैव टू करिकुलम helps us to inherit, develop and transmit all our cultural aspects and the values and the other things. So here also curriculum terms very important. Livelihood, जो मैंने livelihood जो लिखा है, livelihood is also very important. Second point, this is livelihood. There is something wrong. Sorry, it is livelihood. Livelihood is very important. कोई भी शिक्षा जो आपको कमाने में मदद रूप नहीं होती है, वैसी शिक्षा निरर्थक है. क्या करेंगे? ये प्रैक्टिकल है ही नहीं. एजुकेशन शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर. हम आज बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो वो ऐसी चीज हम सिखाएं कि बच्चा कल को न चाहते हुए भी कुछ कमा ले. उसको हम ऐसे स्किल्स डेवलप करके दें कि वो बाहर जाता है तो जहां खड़ा रहता है वहीं उसे कुछ काम ऐसा दिख जाता है जिसको करके वह अपना पेट भर सके. कम से कम इतना तो हो. दिस मच इज मस्ट. दैट इज द प्रैक्टिकल एजुकेशन. दैट इज द रियलिस्टिक एजुकेशन. And this is the job of the curriculum to
to frame itself in a way that it can help our children, हमारे बच्चों को वो मदद कर सकता है कि वे अपने रोजी रोटी खुद से कमा सकें। तो ये लाइवलीहुड जो है उसके लिए भी करिकुलम की जरूरी, और उसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमारे बच्चे टीवी बनाते सीखना चाहिए, मोबाइल ठीक करते सीखना चाहिए, जो नए टीचिंग एड्स हैं वो बनाते होने चाहिए, क्रिएटिविटी उनमें होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, टूटे फूटे में से कुछ अच्छा बना सकते होने चाहिए। अगर ये सब हम हमारे करिकुलम में इंक्लूड करते हैं तो हमारा समाज कभी भी पिछड़ा नहीं रह सकता है। इट हैज टू ग्रो, इट हैज टू डेवलप, एंड फॉर दैट ईच ऑफ अस, हम सभी को स्ट्राइव करना है और करिकुलम को इतना मजबूत बनाना है कि हमारा कोई भी बच्चा कभी भी लाइवलीहुड के बिना न रह सके, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो बोलते हैं वो चीज नहीं रहेगी। अगर करिकुलम हमारा अच्छा है, करिकुलम हमारा स्किल डेवलप करने में मददरूप होता है, इफ वी कैन डू सो, our country will be amongst the developed countries. But for that, you need the curriculum to be very strong. And here also comes the need of the curriculum. And ultimately, एक अच्छे नागरिक, अब अच्छा नागरिक मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, सारे आइडियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, सारे थॉट्स ओके सभी आ जाते हैं। गुड मतलब इट इज अ वेरी वाइड टर्म, सब कुछ आ जाता है। एंड इन दिस वे करिकुलम टर्न्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। एनीवन एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या है? No, sir. No, sir. No, sir. Very much clear, sir. Thank you. Sir. No, sir. Fine. In any concept, when we talk of need, automatically the importance is clarified. Need and importance go simultaneously, side by side. जैसे आप नीड में से आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। नीड is basically the base of the importance. तो नीड्स में से ही आप हमेशा इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम अगर कोई आपको पूछता है तो आप यही पॉइंट्स आप बता सकते हैं, पर लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाएगी। और क्या क्या इंपॉर्टेंस आएगा? तो करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है? तो करिकुलम हमें लिविंग, जीने में मददरूप होता है। करिकुलम का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वह हमें लाइवलीहुड देने में मददरूप होता है। करिकुलम हमें एडजस्टमेंट करने में मददरूप होता है, एडेप्टेशन करने में मददरूप होता है, वैल्यू एडिशन करने में मददरूप होता है। वह हमें किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट या फिर नॉलेज एस्पेक्ट या फिर स्किल एस्पेक्ट को इनहेरिट करने में, डेवलप करने में और ट्रांसमिट करने में, और हमारा फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर करने में हमें मददरूप होता है। वह हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मददरूप होता है। So I hope I have been able to clear the importance of the curriculum. उसके सिवाय आप ये पॉइंट्स भी रख सकते हैं कि करिकुलम क्या करता है। तो आपको कंटेंट फॉर्मेशन में, मेथोडोलॉजी में, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, जो भी बोले आप उसमें, और जो गोल्स हैं उन गोल को सिद्ध करने में मददरूप होता है। करिकुलम हमें एक मार्गदर्शक की तरह दिशा सूचन करता है। इट गिव्स अस द पाथवे टू रन। वह एक रनवे है और हमें उस पर दौड़ना है, हमारे बच्चों को दौड़ाना है, और एक अच्छे समाज की रचना हमको इसी से करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम। वह हमें प्लानिंग, कौन सा कंटेंट रखना है, कहाँ रखना है, किस रूप में रखना है, किसके बाद क्या आएगा, वो होता है ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेशन। तो वो करने में भी मदद करता है। असेसमेंट कैसे करना है उसके लिए सोचने में मददरूप होता है।
डिसीजन क्या लेना है उसमें मदद रूप होता है, और अल्टीमेटली शिक्षा के जो ध्येय हैं उसकी पूर्तता करने में मदद रूप होता है। These all can be the importance of the curriculum। और इस प्रकार करिकुलम जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी और उपयोगी दोनों हो जाता है। Next comes principles of curriculum। What could be the principles of curriculum? यहां भी देखिए, मैंने मुझे लास्ट फ्राइडे को आपके HRDC ऑफिस से कॉल आया था कि आपको ये टॉपिक लेना है। ये 3 घंटे आप लोगों को कुछ अच्छा मटेरियल बताने के लिए, देने के लिए मैंने सैटरडे फुल डे, संडे फुल डे, मंडे 5 आवर्स, ट्यूसडे 3 आवर्स, वेडनेसडे 3 आवर्स, थर्सडे 4 आवर्स, इतने आवर्स को मैंने इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग टू द लेमैन, मैं देश के भविष्य से बात कर रहा हूं। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग टू द टीचर्स। आई कैनॉट बी वेग। मैं कुछ भी इधर उधर नहीं बोल सकता हूं, और मुझे कुछ ऐसी चीज देनी है जो आप लोगों को भी एनविजेज करे, दिशा दे। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आई टेल यू, हम लोग 1 घंटा क्लासरूम में जो 1 घंटा बोलते हैं, अगर आप लिखेंगे, यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स? एनी ऑफ यू कैन यू टेल मी? सपोज राइट नाउ अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सब अगर आप लिखते जाएंगे तो हाउ मच आवर्स इट टेक्स? Any of you? Any idea? Huh? 1.5 hour, almost 2 hours. Almost 2 hours. Okay. Anyone else? ज़्यादा काम? So it is not possible to listen and write together. If we will go to write, it will be difficult to understand the concept. I think there should be no measurement. कोई नहीं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए ब्रेक कर करके, फिर लिखिए। Yes. हाँ, तो क्या कीजिएगा? कितना टाइम लगेगा? क्या लगता है आपको? अगर जो उसको हमको लिखना है तो कितना टाइम लगेगा अंदाजन? 3 से 4 घंटे मिनिमम लगनी चाहिए सर, if we will write it properly. हाँ, प्रॉपरली, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। हाँ, Sir, it will be more than 3 to 4 hours. मोर देन 3 to 4 आवर। तो और अंदाज कितना? मोर देन कितना? मोर देन मतलब कितना? अब तो 100 भी जाता है, 200 भी जाता है, कितना लिखेंगे? Sir, I think if we try for running notes during the lecture, it will take only that much of time with the time you will take to conduct the lecture. No, but I keep on familiar with the running notes. I keep on talking and talking, and you keep on writing and writing. Do you feel that is it possible that you will write with my speed? Sir, अभी तक तो मैंने लिखा है। I tell you, researches show that it takes 27 hours. कितने? 27 घंटे। हम लोग एक लेक्चर जो अभी देते हैं, अगर जो मैं इसको नोट करूं और लिखूंगा, ओके, तो आप समझिए बात को कि जब हम लिखते हैं तो लिखना जो है वो छोटी मोटी बात नहीं है, आपको उसमें क्लैरिटी डालनी पड़ती है। ये पूरी लेक्चर जो है, इट टेक्स अबाउट 27 आवर्स टू राइट दिस सेशन फॉर 1 लेक्चर, 1 आवर लेक्चर। तो 3 घंटे का लेक्चर, 27 3 81 hours is required. This is the result of the research. कि आमतौर पर ऐसा होता है। So it is very difficult. Teaching learning process is something very special. यहाँ कोई ऐसे नहीं हो जाता है कामकाज।
And that is why curriculum also turns very important. Now, I want to discuss about principles of curriculum. What do you feel could be the principles of curriculum? हमने अभी तक करिकुलम का वर्बल मीनिंग देखा, कंसेप्ट देखा, नीड देखा और इंपॉर्टेंस देखा है. From this, you can understand what could be the principles. You can just try. Nothing is right. Adoption and flexibility. Flexibility. This is very important principle of curriculum. Adoption and flexibility. Flexibility बहुत जरूरी है करिकुलम में. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है आपका करिकुलम, तो व्हाट आर यू डूइंग? आपने सिर्फ एक दिशा दे दी है और एक जो रोबोट्स होते हैं ना, आप रोबोट्स तैयार करेंगे, वहां क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी, इनोवेशन कभी नहीं आएगा. किसी भी सिलेबस में जो करिकुलम है, उसका कोई भी सिलेबस है, आप उस सिलेबस में हमेशा एक चीज हमेशा रखने की कोशिश कीजिए. लास्ट यूनिट जो है, लास्ट यूनिट में ऑलवेज कीप इट ओपन एंड उसमें करंट एंड कंटेम्पररी अफेयर्स एंड रिसर्चेस रिलेटेड टू दैट टॉपिक उतना रखिए. आपका बच्चा और आपका सिलेबस हमेशा एडवांस्ड रहेगा, अपडेटेड रहेगा. आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ एक चीजें बेसिक होती हैं, जो बेसिक हैं, वॉट एवर इज बेसिक, दैट इज फाइन. बट इफ द लास्ट टॉपिक, इफ यू कीप दैट contemporary issues for that particular topic, the researches, contemporary researches in that particular topic, ये दो aspect अगर आप consider कर लेते हैं last unit में, I tell you, your syllabus will be always updated and thus your curriculum will always remain updated. उसमें कुछ हमको स्पेसिफाई नहीं करना है कि ये या वो, कंटेंट स्पेसिफाई है कि भाई ये टॉपिक है. एजुकेशन है तो एजुकेशन की ही बात होगी, माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी की ही बात होगी, फिर उसमें हम फिजिक्स की बात नहीं करेंगे. लेकिन वी नीड टू नो दैट आजकल क्या चलता है. हमको हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करना है कॉलेज लेवल पर, तो कम से कम मोटिवेट करना है कि भैया देखो क्या चल रहा है अगल बगल, एंड नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली. और जब हम इंटरनेशनली देखते हैं तो कभी भी हमको ये नहीं भूलना है कि हमारा मूल क्या है, वेयर अवर रूट लाइज, दैट वी नेवर नीड टू फॉरगेट. बिकॉज आप चाहे विदेश को की चीजों को कितना भी देख लें, अगर हम लोगों हमारे रूट्स मजबूत नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई दैट. और अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो इट विल बी फुलिशनेस. हम बेवकूफ बन जाएंगे क्योंकि देयर इज अ गैप, और वो गैप जब तक भरता नहीं है तब तक काम नहीं होगा. सो adoption and flexibility, that is an important principle of curriculum. कहां से क्या, कौन सी चीज, अगर आपको अलग अलग चीज देखते हैं 10 यूनिवर्सिटी की, हमेशा आप अपने डिपार्टमेंट में पहले ये देख लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट से कंपेरेबल दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है. कंपेयर योरसेल्फ विथ सम मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड हायर लेवल. तीनों लेवल के यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट जो हैं उनको आप अपने नजर में रखिए, उनके करिकुलम लीजिए और उनको देखिए और अपने करिकुलम को देखिए. Find out what is the difference. Try to adopt what is good in them. But of course, you have to understand your limitations. फिर ऐसा नहीं कि वहां कुछ भी लिखा है, वहां प्रैक्टिकल लिखा है और आप रख ले रहे हैं, ध्यान चलाएगा नहीं कोई. You have to understand that thing कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं. उनको देखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा आप अडॉप्ट कर सकते हैं उसको अडॉप्ट कीजिए और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ लाइव ह्यूमन, दोज हु डील विथ इमोशंस. आप इन इमोशंस को और दिस लाइवलीनेस को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट. एंड इफ यू आर डूइंग सो, knowingly, unknowingly, you are doing something wrong with the society.
So this is one important principle, that is adoption and flexibility. What could be the another principle? Sir, curriculum should be student centered. Contribution. Curriculum should be student centered. Curriculum should be student centered. It should be Sir, community service. active contribution. Active contribution. Active contribution. Yes. Okay. Student should be, curriculum should be student centered, community centered. कोई भी करिकुलम जो है, करिकुलम शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड. अगर वो मैडम टीचर कहाँ जाएंगे? टीचर को नहीं रखना है? हेलो. Collection of experience. It should have a mix of teacher and student. सिर्फ हम अभी तक हमने देखा है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं, बट it has not paid us well, because yet we are unable to recognize and understand our duties and responsibilities very well. We have not been able to understand. And unless and until the country or the learners or the potential prospects is ready to understand their duties, responsibilities, and limitations, this particular center, चाहे वो टीचर सेंटर्ड हो या स्टूडेंट सेंटर्ड हो, वहां तकलीफ हो जाएगी. Okay, so of course it is the principle of curriculum. It is these days, it is that it is student centered, but we have to understand that teachers are also equally important, and without teachers, so there should be a balanced mix. It should be teacher centric as well as student centric also. Okay, it should be community centered also. Agar you are unable to meet the needs of the community, that curriculum is useless. जरूरत ही नहीं है ऐसी चीजों को, फेंक दीजिए. So that is also very important. Over and above that, the active involvement is must. Because अभी जैसे मैं बीच बीच में आपको सवाल पूछ लेता हूं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं. हमको एक ऐसा माहौल तैयार करना है. हमको किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? लेट देम स्पीक. और अगर आप प्यार से पूछेंगे तो कोई भी आपको प्यार से ही जवाब देगा. एवरीवन wants to be loved, and one thing, we love. Why? We love because we want to be loved. We love because we want to be loved. मैं अगर अच्छा बनता हूं तो इसीलिए क्योंकि मुझे अच्छे लोग अपने अगल बगल चाहिए. Okay, we are not doing anything for anyone. We are doing it for ourselves. जब ये समझ आ जाती है लोगों में, तभी आप कुछ भी बोले, फिर टीचर सेंट्रिक बना दीजिए या स्टूडेंट सेंट्रिक बना दीजिए, नो प्रॉब्लम. It's not at all a problem, because now people are responsible. People know what they want to do, what is their limitation, what are the do's, what are the don'ts. They know, and when they know this thing, the society is ready for all and everything. ऐसी सोसाइटी को कोई नहीं रोक सकता, और फिर उसके लिए कोई बाध्य, कुछ रुकावट नहीं होती है. वो सब पार कर लेता है, because they know their do's and don'ts. They are not living for themselves. They are living because they want to live. They want to add. They want to do something better. And when we have this idea, the society grows, the society develops. So this is also very important, that right now, most of the universities, colleges, their curriculum is student centric. So this is one, and also the community, the principle of curriculum also says that it should be community centered. It should also be some of the curriculum believes in being subject centered. It's fine.
There are different policies, different countries have their own requirements. So accordingly, they frame their curriculum. Their education focuses something special. So accordingly, they frame their curriculum. Fine. What more can be the principle of curriculum? It should be the collection of experiences of practical activities. It should be based on experience or the practical experience. It should be it should be based on the practical experience. This is very important. सिर्फ theoretical आप दे दीजिएगा उससे काम नहीं चलता है. कुछ तो करवाइए. बच्चों को मालूम तो हो. ऑक्सीजन बोलते हैं हम साइंस में. हाउ टू प्रिपेयर ऑक्सीजन वो क्लासरूम में ही पढ़ा कर छोड़ देते हैं. आप लेबोरेटरी हो, एक्सपेरिमेंट करवाइए, बच्चे अपने आप देख लेंगे, समझ लेंगे. 90% बच्चे उसको समझ लेंगे. 70% समझेंगे, 50% समझेंगे, उतना तो कम हुआ. So we have to allow our students to do on their own. If we allow them, तो 100 के 100% बच्चे समझेंगे कि ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है. ओके, हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर होता है. फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो बच्चा जिंदगी भर याद रखता है. अपने बच्चे को सिखाएगा, अगर हमने बनाया था हाइड्रोजन खुद से. This is something important. We have to add to the practical experience, and that is why it is one of the principles of curriculum. Then what more? For creating the employment. The principles, it is very important. The principle of employability. The curriculum should be such that it should be able to provide employment to the prospects. Then what more it could be? देखिए ये है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम. आप लोगों ने जो बोला ये मैंने कुछ नोट किया है. अपार्ट ऑफ दिस देयर कैन बी मैनी, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स. कहीं पर कोई रिजिडिटी नहीं है और कहीं कोई रोकथाम नहीं है. अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपके आर्गुमेंट में लॉजिक है, दैट कैन बी द प्रिंसिपल. मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड टाइम. व्यक्तिगत जरूरतों को समाहित करना है, समाज की भी जरूरतों को देखना है, और समय की मांग जो है उसके हिसाब से करिकुलम डेवलप होना चाहिए. तो इन तीन चीज को ध्यान में रखना है. अगर आप किसी को भी भूल जाते हैं तकलीफ हो जाएगी. देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस. appropriateness of learning objectives. ये भी इसका एक उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है. योग्य उद्देश्य होना चाहिए. अब आप पहली कक्षा के बच्चे के लिए बोल देंगे कि हम उसको भाषा में रुचि उत्पन्न करेंगे या विकसित करेंगे. दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड. गलत है, वेग है. हम उसको एटीट्यूड डेवलप करवा देंगे. This is not possible. पहले ज्ञान होता है, फिर समझ होता है, उपयोग होता है. ओके, वो समझेगा नहीं तब तक उपयोग नहीं कर पाएगा. उपयोग जब तक नहीं कर पाएगा तब तक वह उसे अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा. और जब तक वह अच्छा बुरा अनुभव नहीं प्राप्त करता है तब तक वह आगे उसमें रुचि, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ऐसा सब कुछ नहीं डेवलप कर सकता है. वो अनुभव प्राप्त होगा उसके बाद ही वह या तो एटीट्यूड डेवलप करेगा या खो देगा, इंटरेस्ट डेवलप करेगा या खो देगा, डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस. सो योग्य, appropriate learning objectives are also the principles of curriculum. Establish learning experience. जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमने बोला वो भी अंदर आ जाते हैं. हमें कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं बच्चों को, क्या क्या, तो वास्तविक जीवन में उसे क्या मदद रूप होगा वो देना है. कमाने के लिए कौन से कौशल्य की जरूरत है तो वो भी देना है. स्पिरिचुअलिज्म के लिए कौन सी बातें जरूरी हैं वो देना है. मूल्य कौन से जरूरी हैं तो वो भी देना है. नॉलेज कौन सी चीज की जरूरी है वो भी देना है.
मैथमेटिक्स का थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा साइंस का चाहिए, थोड़ा समाज विज्ञान चाहिए। ओके, सारे विषय जो ना, भाषा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, बट आई बिलीव लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास भाषा पे कमांड है तो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर किसी को भी आप अपनी ओर अभिप्रेरित कर सकते हैं। लैंग्वेज हैज दैट पावर। तो ये सारी चीजें जो है, ये भी हमें तय करना होता है कि कौन से अध्ययन अनुभव हमें बच्चों को देना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा देंगे। आपने अभी भी देखा होगा कि हमने पहले वर्ड से चालू किया, फिर कंसेप्ट पे आए, फिर जरूरत पे आए, फिर इंपॉर्टेंस पे आए, और उसके बाद अब प्रिंसिपल्स पर आ रहे हैं। तो हमने कुछ कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अगर हम ये ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। 1 के बाद सीधे 100 नहीं आ सकता है। 1 के बाद हमें 2 सिखाना ही सिखाना है, 3 आना ही आना है। उसके बाद अगर ऐसे लाइन में पढ़ते हैं तो काम का है। अगर हम 110, 25, 4, 3, 2, 7, 9, 8, दिस इज नॉट द वे। अगर हम ये करवाते हैं तो बच्चा कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, that we have to organize the learning experience. Flexibility and practicality, that is also very important. अभी मैंने कहा था, पहले आप में से किसी ने कहा था adoption and flexibility, उस समय कहा था हमें क्या adopt करना चाहिए। हमारे recent चीजें जो contemporary चीज हैं, issues हैं, वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए flexibility चाहिए। करिकुलम को प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, खाली आइडियलिस्टिक होने से नहीं चलेगा। We have to understand that thing. So that is the principle of curriculum. Evaluation, हमने जो सिखाया, क्या सिखाया और बच्चों ने कितना सीखा। हमारे जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं, what have they learned, how much they have learned, how is their learning. If we want to know this, we need to conduct the evaluation. This is very important, because through this only we come to know that whether the goal of education is satisfied or not. शिक्षा का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्राप्त हुआ है या नहीं, वो तय करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। सिर्फ उतना नहीं, अगर ये इवैल्यूएशन हमें दिखाता है कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, तो हमें फिर से करिकुलम को देखना है, डिजाइन करना है, उसमें क्या कमी रह गई है, कहां बच्चों को तकलीफ पड़ी है, उसमें जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई वी से इवैल्यूएशन फॉर रिफ्लेक्शन। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए, हर साल इवैल्यूएशन होना चाहिए, एंड वी हैव टू सी that where is the problem, what is the problem, how the problem can be resolved. जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक शिक्षा के जो ध्येय हैं वो ध्येय सिद्ध नहीं होंगे। तो इसीलिए करिकुलम को बार बार इवॉल्व होना चाहिए, अगेन एंड अगेन इट शुड बी इवॉल्व, एंड दैट इज कॉल्ड रिविजन फॉर इफेक्टिवनेस। अगर हम इवैल्यूएशन के बाद रिफ्लेक्शन देते हैं और रिवीजन भी करते हैं तो हमारा करिकुलम बढ़िया होता है। सो दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स, दीज एंड मैनी मोर कुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। आप लोगों ने जो बोला वो सारे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे पास कम समय है, हमारी स्क्रीन भी छोटी है, तो हमने छोटा छोटा रखा है, कम रखा है, पर बाकी it is not that the principles of curriculum are only this much more can be the principles of curriculum.
स्टूडेंट, आपने जो अभी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, वो सब अगर जो हम कुछ रखते हैं, तो वी कैन पुट इट इन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑल्सो, एज वेल वी कैन टेक इट एज एन अप्रोच टुवर्ड्स अ करिकुलम ऑल्सो. Okay, so that's fine. You can put it here also, you can put it in approaches also. Both are fine. Anyone, any problem till here? No, sir. No, sir. Next comes foundations, यानी कि basis of curriculum. मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, शॉर्ट में बता देता हूं कि करिकुलम के लिए आधार स्तंभ क्या क्या है. तो फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फिलोसॉफी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कल्चर, सोसाइटल इन्फ्लुएंस. कल्चर भी बहुत जरूरी है, संस्कृति भी बहुत जरूरी है, सोसाइटल इन्फ्लुएंस. समाज को क्या चाहिए वो भी हमें देखना है, समाज की क्या जरूरतें हैं, समाज का क्या अभिगम है, हमें वो भी ध्यान रखना है, और वो भी करिकुलम का आधार स्तंभ है. वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. कोई भी समाज कौन से मूल्यों को मानता है, समझता है, सिद्ध करता है, हम उन मूल्यों के आधार पर हमारे करिकुलम की संरचना करते हैं. नीड ऑफ द सोसाइटी. समाज की क्या जरूरत है, लीडरशिप, पॉलिटिक्स जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप को क्या चाहिए. ओके, दैट ऑल्सो फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी करिकुलम कभी भी, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो है क्या, इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. यू नो, we all are governed by these constitutional values. यही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही हमें गाइड करता है. अगर हम लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, वह नहीं चलेगा. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी which has been framed now, that also abides by the constitution, and the constitution has there are several values, but 5 important values: socialism, secularism, democracy, republic, and sovereignty. These are the 5 important values. फिर justice, fraternity, equality, these are okay, but the 5 basic values, fundamental, these are very important. So these form the foundations of curriculum. और इन सब का इंटर रिलेशन, इनके बीच में भी संबंध है, इन संबंधों को भी हम नहीं छोड़ सकते. तो ये सारा जो मिक्स है, दिस मिक्स फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. अगर हम इनमें से किसी को भी, एक को भी छोड़ते हैं तो हमारा काम नहीं होता है. I hope I am clear with the foundations of curriculum. These are simple but very important. We have to understand that what are the foundations, what forms of basis of the curriculum. Curriculum के आधार स्तंभ क्या क्या हैं. तो ये सारे जो हैं यही इनके आधार स्तंभ हैं. Right. Next comes aspects or components or elements of curriculum. Curriculum के elements क्या क्या हैं, components क्या क्या हैं. तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो कौन से सबसे पहले तो क्या होना चाहिए,
assumption. देश, experts, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमिटी मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो है जब भी कुछ भी सोचते हैं तो हमारे पास एक पूर्व धारणा होती है. We have some basic assumptions based upon our pre-experience, upon our reading. We have some pre-experience. These work as a basis and these help us develop some assumptions. अभी मैं भी जब आज 5 मिनट पहले आप लोगों के टीचर्स के साथ, मैडम के साथ बात कर रहा था, तो I was just inquiring that who are the students, who are the potential prospects. पहली बार भी जब मुझे कॉल आया था तो मैंने उनसे इतना ही पूछा था कि who are the potential prospects and from which background they belong to. We should know that thing. अगर हम ये जानते हैं तो हमें कहाँ डिस्कशन करना है, कब डिस्कशन करना है, ये हमें पता चलता है. हमें कैसा फ्लो रखना है वो हमें पता चलता है. It is very important to know this thing because this helps us to build an assumption. फिर ऐसा भी नहीं है कि हमको assumption को एकदम rigidly दिमाग में फिट कर लेना है. नो नो नो, not that. This is basic. फिर टाइम देखना है और अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो इस गड़बड़ी को फिर हमें रेक्टिफाई भी करना है. But we should have some assumptions. So these assumption, this is the first component of curriculum. Based on this assumption, we formulate. और अभी जो पूर्व आधार स्तंभ बताए मैंने, फाउंडेशंस बताए, वो फाउंडेशंस के आधार पर एजुकेशन की जो नीड्स हैं उसके आधार पर एजुकेशन के जो नीड्स हैं उसके आधार पर हम लोग उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित करते हैं. इसी लक्ष्य में से हम उद्देश्य, हेतु, विशिष्ट हेतु वो भी निर्धारित करते हैं. एंड इन दिस वे वी हैव द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज द गोल, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. जहां तक जा सकते हैं जाइए. ये सारे सेकंड कंपोनेंट है. तीसरा कंपोनेंट आ जाता है करिकुलम के लिए क्या आवश्यक है. कंटेंट. दिस कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कौन से कंटेंट को रखना है, वो डिसीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट रिक्वायर्स अ लॉट एफर्ट्स. इट इज अ मैनेजरियल जॉब. इसमें परफेक्ट मैनेजमेंट चाहिए. प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, डिसीजन टेकिंग है, लीडरशिप है, मोटिवेशन भी चाहिए. So these all are provided through the content. This forms the third component of elements of curriculum. कंटेंट को आप कैसे देंगे, बच्चों को कैसे पिरचेंगे? How will you deliver the content? For that you need the pedagogy. This includes all and everything. Methods, approach, techniques, strategies, सब कुछ आ जाएगा अंदर. टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज, टीचिंग एड्स, एवरीथिंग कंटेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा. ओके. और पेडागोगी को यहां पर अभी वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग ओनली टू द टीचिंग मेथड्स एंड ऑल. हम कंटेंट भी ले लेंगे, टीचिंग मटेरियल भी ले लेंगे, सब कुछ इसके अंदर ले लेंगे. सो दिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ करिकुलम. अब ये सब चीजें तो हो गई. हाउ विल वी कम टू नो दैट हाउ द थिंग्स आर? व्हाट हैव वी डन? हाउ हैव वी डन? व्हाट हैव द स्टूडेंट्स गेन्ड? व्हाट इज देयर लर्निंग? Whether the goals of education has been
pacified or not, satisfied or not, achieved or not. If we want to know all these things, they need to go for evaluation and assessment. And there comes, this is the fifth component, evaluation, मूल्यांकन. And एक छठा भी है. ये सब करने के बाद Hello, I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ सर. गड़बड़ है. हाँ. हेलो सर, थोड़ा हेलो, कैन यू हियर? यस, बीच में ब्रेक आ गया है सर थोड़ा. सॉरी आप हो जाएगा. ओके ठीक है सर. इन एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम में देयर इज 5-6 एलिमेंट्स: assumption, goal, content, pedagogy, evaluation and reflection. मैंने ऐसा कहा कि assumption बहुत जरूरी है. ये पूर्व धारणा है. ये पूर्व धारणा अगर नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं निर्धारित कर पाएंगे. तो इसके बेस पर हम गोल बनाते हैं. गोल के आधार पर हम कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं. कौन सा? आशीष, હું કોલ કરું છું. 5 મિનિટમાં કોલ કરું છું. 5 મિનિટમાં કોલ કરું છું. He was turning restless. Elements of curriculum, it includes assumption, goal, content. Goal, they define and help you to take the decision, help you to plan, organize and decide what the content should be. Based on the content के आधार पर आप ये निर्धारित करते हैं कि हमें कौन सी पद्धति कहाँ कब कैसे उपयोग करना है. कौन से लर्निंग रिसोर्सेज होंगे, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होंगे, कौन से टीचिंग एड्स होंगे. ये सारी चीजें आप कंटेंट के आधार पर तय करते हैं. इसीलिए वो पेडागॉजी जो वो चौथा एलिमेंट होता है. पेडागॉजी के आधार और कंटेंट के आधार पर आप ये निर्धारित करते हैं, चेक करते हैं कि क्या अभी तक बच्चों को मिला है, हमने क्या करवाया है, हमने कैसा किया है. It is not only the test of the student, it is test for both teacher and student. So it helps you to evaluate whether the educational goals has been achieved or not. शिक्षा के का जो लक्ष्य है, उसके जो हेतु हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो विशिष्ट हेतु हैं, वो सब सार्थक हुए हैं या नहीं हुए हैं. ये निर्धारित करने के लिए कंटेंट जो हमने सिलेक्ट किया वो ठीक है या नहीं है, पद्धति जो हमने उपयोग किया है वो ठीक है या नहीं है, उसके लिए हमें इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है. और ये मूल्यांकन के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई है और ये कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं. तो इसके लिए हम रिफ्लेक्शन, ये एक छठा एस्पेक्ट रखते हैं. If any of you have any trouble in this, we will discuss about it after your lunch break. I think now it is your lunch break. Madam, am I right? Yes, sir. We'll take a break of 15 minutes. 15 minutes. यही टाइम था ना लंच ब्रेक का? 12 o'clock? Sir, हाँ 12 o'clock. We will start our next lecture, sir, at 12:30. 12, 15 या 50? सर 15 मिनट का ब्रेक चलेगा कि आधे घंटे का ब्रेक देना है, आप बताइए. इट्स अप टू यू. इनको लंच ब्रेक दे रहे हैं ना अभी? यस सर, रिफ्रेशमेंट ब्रेक यू कैन से. रिफ्रेशमेंट तो 20 मिनट दे दीजिए. हाँ जी सर, 12:20 को अपन चालू करते हैं आगे का सेशन. ठीक है सर. फिलहाल मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ टू सेव दिस सेशन एंड आफ्टर 5 minutes आई विल अगेन ओपन इट. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हाँ समझ में आ गया. अभी मैं ये मीटिंग एंड करती हूँ. 10 मिनट के बाद आप लोग ज्वाइन करें. ठीक है मैडम.
Yes, ma'am. 12-20 हाँ, ज्यादा ब्रेक मत लीजिए। जहाँ सर मेरी आवाज आ रही है? रिजॉइन व्हायचं मॅडम? हाँ जी बोलिए। सर मैं अभी ये मीटिंग एंड कर रही हूँ। हाँ जी मैं 5 मिनट के बाद फिर से ऑन करती हूँ इसको, ये सेशन में सेव कर लेती हूँ। कोई बात नाही, फाईन. ठीक आहे फ्रेंड्स, 10 मिनिटानंतर जॉईन व्हाल सगळेजण परत। ठीक आहे? Okay, ma'am.